family. Hope you all are doing good, and it is such a joy to see you all joining today. May God bless you so much as today you have chosen the portion of His presence. May God bless you abundantly, dear family. And our God is a very gracious God, dear family. Let's take a moment to thank our dear Father for all the blessings. Let it be big or small. Thank you, Jesus, for your grace, your mercy, and your love, Lord Jesus. Yes, family, His grace is sufficient for us even when we feel weak, unsure, or find ourselves struggling. His grace is very comforting for us, and it is such a relieving thing that through His grace, His strength, we can overcome the challenges. उसकी अनुग्रह कृपा हमारे लिए बहुत ही सुकून देने वाली है. यह कितनी राहत की बात है कि उसकी कृपा और उसकी शक्ति के द्वारा हम हर चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं. Isn't it amazing, dear family? Yes, I would love to read a verse from Bible. The Bible verse for today is from John 15:4, which says, "Remain in me, and as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me." यूहन्ना उसका 15:4 कहता है, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा. जैसे डाल अपने आप से फल नहीं ला सकती जब तक कि वह दाखलता में बनी न रहे, वैसे ही तुम भी नहीं यदि तुम मुझ में बने न रहो. Amen. Let's bow our heads and pray, dear family. Dear Heavenly Father, we come before you, Lord Jesus. Lord, you're an amazing God, Father God. Lord Jesus, you're an amazing Father God, Lord Jesus. Lord, we get to call you Father, Lord Jesus. What a blessing it is, Father God, Lord Jesus. Lord, you're such a beautiful God, Lord Jesus. You're such an amazing God, Lord Jesus. Help us to shine our lights, Lord Jesus, because you have called us the salt and the light of the earth, Lord Jesus. Lord, help us to become like salt and light for others, Lord Jesus. Lord, help us wherever we lack, Lord Jesus, in glorifying you, Lord Jesus. Help us there and help us to glorify you there as well, Lord Jesus. Let us walk mostly like holy. Let us walk in holiness, Lord Jesus, because you're a holy God, Lord Jesus. You're the most perfect, the most precious, the most holy God, Lord Jesus. We bless your name, we uplift your name, we exalt your name, Lord Jesus. Lord Jesus, I surrender this complete service into your mighty hands, Lord Jesus, into your loving hands, Lord Jesus. Let your will be done, Father God. Let people who are coming here, Lord Jesus, let them be known for your grace, Lord Jesus. Let them know your grace, that you are such a gracious Father God, Lord Jesus. We thank you for everything, Lord Jesus, everything, for your love, for your mercy, for your grace, for your understanding that you're such an understanding God, Lord Jesus. Help us to become more like you, Lord Jesus. Help us to portray character like you, Lord Jesus, in this world, Lord Jesus. Lord, we bless your name, we uplift your name, we exalt your name. In Jesus' mighty name I ask this prayer. Amen and amen. Now we have come to the time of recap. Family, God has been doing absolutely incredible things in Jago. Welcome to Jago Ministries. Here's a little glimpse of what God has been doing among us in these past few days. From 9th to 13th March, our daily devotionals were centered around the Lenten season. Each day invited us to slow down, reflect, and realign our hearts with God. On the 14th March, we stepped into the Enlarge the Tent fasting journey. As a family, we are seeking God together, asking Him to expand our vision and prepare us for what He has ahead. Also on 14th March,
we had our Men of God meeting led by Brother Aditya Raj. It was a time of encouragement, reminding men to walk in purpose, stay grounded, and live with clarity in their calling. On 15th March, during Jago Sunday service, Pastor Sheldon shared a heartfelt message titled Healed, Not Hardened. It was a simple yet powerful reminder to choose healing over hurt and to keep our hearts soft before God, no matter what we go through. Also on 15th March, Pastor Sheldon ministered in Manipur, where many gathered to receive the word and be strengthened in faith. What a blessing! And in Jago Music Updates, on 14th March, the Autumn Bootcamp Collective 2025 song Uduchalaya was released on the Jago Music YouTube channel. It's a fresh, uplifting sound that we pray will bless you as you listen and draw you closer to God. Through every devotion, every gathering, and every moment, we can see God gently shaping our hearts and leading us forward. Thank you for being part of this journey with us. We are growing, learning, and walking this out together, and we truly believe God has so much more ahead. Family, now we have come to the time of testimonies. परिवार, अब हम गवाही के समय पर आ गए हैं. A testimony is a proof that He cares about us so much that He wants us. He wants to see us flourish in our lives, Lord. Lord Jesus is such a great Father. So now let's watch testimonies, how His goodness and mercy follows us all the days of our lives. Praise the Lord, family. This is Nitya. I would like to share a small testimony. I have been haunted with my dreams for so many months actually. So I was asking Jesus about, Lord, why these dreams are haunting me? Why are I'm getting these bad dreams for so many days? What should I repent? What should I do? What should I pray that I'm to come out of this loop? Because now whenever I get those dreams, I used to feel so low and so moody throughout the day. I feel like so much of procrastination happening through those dreams also. So then I asked Jesus, like, Lord, what should I pray? What are the exact words I need to put in at your feet so that I will be delivered from this? And one day in healing and deliverance meet, so I heard the word by Pastor Sheldon and he prayed, and that moment I prayed for myself, Lord, please deliver from me through these dreams, and I should not dream those bad dreams never again. And that moment through the prayer, I've seen that angels with the swords, they came near my soul and they freed me from those chains, and I literally seen that vision. And from that time I did not receive any bad dreams. All praise and glory to Jesus alone, and I praise God for the fellowship He has given me and blessed me with. Thank you so much, family. Hello everyone, praise the Lord. My name is Prashant. I am from Sydney, Australia. I just wanted to share this testimony. Last month when I visited India, I bought a property. I actually wanted to buy a property from a long time in Sydney, but it never worked out. But this time when I visited India, this happened in 2 weeks. Everything went very smoothly and I was able to buy a property by God's grace. And secondly, my wife, who was a doctor in India but was struggling to get an offer here, when I shared this testimony with Pastor Sheldon, he assured me that everything is alright and this is just a beginning and my wife will get a job offer soon. After he has spoken those words, within just 10 hours, my wife received an interview call which was very unexpected, and she grabbed an offer within 2 weeks. And thirdly, when I reached Australia, I just got a pay rise.
that was also very unexpectedly. So I just want to thank God for letting me give this testimony by His man Sheldon Mangera. Thank you, Lord, and thank you, Pastor, for giving me this opportunity. Bless you all. Have a nice day. Praise the Lord. Yes, dear family. Now we have come to the time of praise. Let's prepare our hearts to give praise to our most perfect Father who is so loving and good. आइए हम अपने हृदयों को तैयार करें कि हम अपने सबसे सिद्ध, प्रेममय और भले पिता की स्तुति करें. Praise the Lord, Parivar. A very good morning. I hope you all are doing good. Let's lift our voices and worship our Jesus King. Hallelujah. मिलकर ताली बजाकर हम इस गीत को गाएंगे. तू ही मेरी चाहत है, तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरी यीशु. मिलकर तू ही मेरी चाहत है, तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरी यीशु. दिल की एक तमन्ना, बीच रात की पुकार, तू ही मेरी जिंदगी है, मेरा पहला प्यार. दिल की एक तमन्ना, बीच रात की पुकार, तू ही मेरी जिंदगी. Everybody, आइए हाथों को उठाकर बोलेंगे मिलकर. तो गाऊं मैं है सदा, तो गाऊं मैं है सदा, तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरी यीशु. तू ही मेरी चाहत है, तू ही मेरी चाहत, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरी यीशु. तुझ पर ही भरोसा, तू ही मेरी स्थिर चट्टान. तुझ पर तन मन हार, तुझ में है आसान. Everybody sing together. तुझ पर ही भरोसा, तू ही मेरी स्थिर चट्टान. तुझ पर तन मन हार, तुझ में है आसान. तो गाऊं मैं है सदा, तो गाऊं मैं है सदा, तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरी यीशु. तू ही मेरी चाहत है, तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरी यीशु. Praise the Lord. Hallelujah, परिवार. Thank you, Jesus. Hallelujah. गाऊं मैं सदा तेरा ही नाम, गाऊं मैं सदा तेरा ही नाम. तो गाऊं मैं सदा, तो गाऊं मैं सदा, तू ही मेरी चाहत है, तुझसे
हालेलुया। मिलकर ताली बजाकर यीशु मसीह के नाम को महिमा करेंगे। आइए एक और गीत गाकर प्रभु की आराधना करेंगे मेरे प्रियो। द बाइबल सेज दैट जीसस नेम इज द मोस्ट हाईएस्ट। यीशु मसीह का नाम सब नामों में ऊंचा है। प्रेज लॉर्ड। और जब प्रभु के लोग मिलकर आराधना कर रहे हैं, लेट्स लिव द नेम ऑफ जीसस हाई 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 एंड मोर हाई। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। थैंक यू जीसस। ताली बजाकर प्रेज द लॉर्ड। वी ऑल नो जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। आइए मिलकर ताली बजाकर प्रेज़ द लॉर्ड। जो बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। Let's sing, यीशु तेरा नाम। Everybody, सबसे ऊंचा है। Hey, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। आइए परिवार मिलकर यीशु के नाम को सलाम करते हुए। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय है। जिस नाम से ये ज़माना झुके, नाम को सलाम। जिस नाम में है, बोलो यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord परिवार। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। God bless you. Family, now we
have come to the time of announcements. Let's be attentive, dear family, so you don't miss out on any important updates. गजर करा प्रभु येशू नामाचा गजर करा प्रभु येशू नामाचा विजयशाली प्रभु येशूची घोषणा तुम्ही करा विजयशाली प्रभु येशूची घोषणा तुम्ही करा जय घोषाले निरंतर त्याची स्तुती तुम्ही करा जय घोषाले निरंतर त्याची स्तुती तुम्ही करा गजर करा प्रभु येशू नामाचा गजर करा प्रभु येशू नामाचा अहो वैष्णो उन्नत व्हा कमानी उंच करा अहो वैष्णो उन्नत व्हा कमानी उंच करा राजांच्या राजा येशूसाठी द्वार उघडे करा राजांच्या राजा येशूसाठी द्वार उघडे करा मिळून सारे महिमा त्याचा करा मिळून सारे महिमा त्याचा करा गजर करा प्रभु येशू नामाचा गजर करा प्रभु येशू नामाचा या सर्व मिळून आपण सारे धन्यवाद करू या सर्व मिळून आपण सारे धन्यवाद करू राजांच्या राजाला प्रभूला स्तुतीचे गीत गाऊ राजांच्या राजाला प्रभूला स्तुतीचे गीत गाऊ हात उभारून उच्च स्वराने महिमा त्याचा करा हात उभारून उच्च स्वराने महिमा त्याचा करा गजर करा प्रभु येशू नामाचा 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 केले येशूने असे अद्भुत काम साऱ्या जगाकरता झाला तो बलिदान वाहून निरंतर त्याने दिला आपला प्राण न भूतो न भविष्य त्याच समान स्तुती करा भक्ती करा हुसेन गा त्याच ओठांचे फळ घेऊन या Hello, friends, partners, well-wishers, supporters, Jago family members, all of you from around the world that have been generous towards this ministry. This is Pastor Sheldon Bangera with an urgent appeal. We are about to buy a building in Bangalore City as a satellite church. It's already constructed. It has a hall for our satellite church and for fellowship, and it has offices to seat our staff, and it also has a parsonage, and it's an amazing multi-purpose building. We can run boot camps there, and it's going for a price of 1.8 crore all together, all the expenses put together. Now, this is our prayer. The Lord, we do not want to take over any debts, but we are believing God to raise this kind of money. And friends, we need your support right now. If the Lord is putting on your hearts to give sacrificially, whether it's 10 lakh rupees or 5 lakh rupees or 2 lakh rupees or even 1 lakh, whatever you can do, we have just a limited period of 60 days. So between 30 and 60 days, we want to try and raise at least about 70 to 80% of the budget within 30 days, and probably in the next 30 days we'll raise the rest. So I'm calling out to you as an urgent appeal. Please do consider this. Please pray about this. And I believe this is going to be a milestone shift for us in Jago at the ministry, for us to cater to the IT professional world, to the Gen Zs. And your seed and your contribution is going to make a kingdom impact for eternity. What you sow right now in sacrifice is going to come back to you in returns and dividends to you and your family over generations to come, and your names will be written in the book of life for all the souls that are going to be added through this ministry over the next 10, 20, 30, 40 years through this Bangalore mission. So please jump in and support this cause.
ASAP. If you need any more information, just say I am interested and the team will give you more information on how you can support this. We are structuring this transactions very carefully given the current governmental situations, but this church is thriving and growing, and this is good ground for you to sow your seed. I'm asking you and inviting you to come in and jump in to support us through the Mission Bangalore project ASAP. Thank you so much. We have now come to the time of offering. Family, this is our moment to honor God with our giving. So परिवार, यह हमारा समय है कि हम अपनी भेंट के द्वारा परमेश्वर का आदर करें. Let's give with joyful hearts and grateful hearts, knowing everything we know, everything we have comes from Him. If you're already part of a local church, we encourage you to be faithful to your local church pastor with your tithes and offerings. We want you to continue to be blessed, and there is no compulsion to give. But if you do want to help Jago spread the word of God and do the amazing work that our teams and staff do, prayerfully consider becoming a monthly partner for rupees 2,000 only. And if you do not have a local church and consider Jago as your home, we encourage you to start tithing as the scripture teaches us. Now, tithing is God's method to advance the kingdom. It enables us to support our many staff and ensures sustained financial growth for believers like you and me. Let our team know and they will guide you further. अगर आप एक स्थानीय कलीसिया का हिस्सा हैं तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने स्थानीय कलीसिया के पासबान के प्रति अपने दशमांश और भेंटों में विश्वास योग्य बने रहें। देने के लिए कोई दबाव नहीं है और हम चाहते हैं कि आप निरंतर आशीष पाएं। लेकिन अगर आप जागो के माध्यम से फैलाए जाने वाले परमेश्वर के वचन में और हमारी टीम्स और स्टाफ के द्वारा किए गए बड़े कामों में शामिल होना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्रार्थना पूर्वक मात्र 2,000 रुपये महीने सहयोग करते हुए आप हमारे साथ में पार्टनर या भागीदार बन सकते हैं। और अगर आपकी कोई स्थानीय कलीसिया नहीं है पर आप जागो को अपना घर मानते हैं तो जैसा पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपना दशमांश देना शुरू करें। मेरे प्रियो, दशमांश परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का, हमें अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट करने का और आप और हम जैसे विश्वासियों के आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा जरिया और माध्यम है। हमारी टीम से संपर्क करें और वे आपकी मदद करेंगे। यीशु नाम की जय जय हो, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सब मिलकर गाएं जय जय हो, सब मिलकर गाएं जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सब मिलकर गाए जय जय हो, सब मिलकर गाए जय जय हो। पापों को क्षमा करता है, श्रापों को मिटा देता है, नफरत की दीवार तोड़ता, चिंताओं को करता दूर, हर दिल को देता सुकून, दुष्ट को हावी ना होने देता, कभी रुकने ना पाए, अब भजते ही जाए, यीशु की हम गाए जय जय हो। जगह जगह से आए सभी संत जब मिल जाए, यीशु की हम गाए जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सब मिलकर गाएं जय जय हो, सब मिलकर गाएं जय जय हो। Who is ready to worship the King of Kings? Dear family, we have come to the time of worship now.
अब हम आराधना के समय में आ गए हैं. So let's open our hearts and worship Him in truly, in spirit and truth. So family, let's focus our minds and hearts on worshiping Him and uplifting His name above all name. Over to you, team. Yes. यस परिवार, आइए थोड़ी देर आराधना करेंगे. लेट्स वर्शिप द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. लेट्स वर्शिप द वन हु डिजर्व्स द ग्लोरी. The Bible says there are thousands of angels glorifying Him in the heavens. And today when we are here, the people of God, let's forget everything. You are before the throne of the great King, the King who loves you like anything. We are before that throne. Our God is before us. Nothing else. Nothing else. Let's प्रभु से मांगे कि प्रभु तेरी उपस्थिति से मैं भीगना चाहता हूँ, मेरे सर से लेकर मेरे पैर तक. I just want to be soaked in the Spirit as I worship. Let your Spirit, your power, and your glory take over. Lord, in this morning as we are worshiping, we want the same glory that filled temple. Same glory here. Hallelujah. We want to bless your name. You deserve the glory and the honor. God, we lift our hands in worship as we lift our holy. You deserve the glory as we lift our holy hands. And the honor. God, we lift our hands in worship, and we lift your holy name. For you are great, you are miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, Father. Lord, we just want to lift your name and say, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Because you deserve the glory. You deserve the glory and all the honor as we lift our hands in worship. We lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Oh God, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Yes, Father. There is no one else like you. Hallelujah.
heart sing hallelujah, hallelujah, for the Lord Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Everybody, oh, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Diba baba shakura barabala shandaradan. Diarara. Hallelujah. I milker praise you, Jesus. Let's lift the name of Jesus high. High. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। प्रभु हालेलुया यीशु मसीह, तेरे जैसा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया यीशु। प्रभु हम भी तेरे चरणों में झुके हुए हैं और बोल रहे हैं ओ यीशु तेरी महिमा गाए ज़मीन, हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। To our King, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। यीशु तू प्रभु है मेरा खुदा,
यीशु प्रभु है मेरा खुदा, हाँ यीशु तू है मेरा खुदा। एक बार और बोले, प्रभु यीशु तू है मेरा खुदा। Praise you Jesus, praise you Jesus। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं महान प्रभु। सारी आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत और जलाल सिर्फ यीशु के लिए, सिर्फ यीशु के लिए आदर और महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Family, now we have come to the special moment of the service, that is Word of God. Family, let's be expectant that God will speak to our hearts today. Family, grace is a gift from God, and we need grace of God every day to live a godly life. And His grace and His unconditional love equips us and holds us as we do this life. And family, truly God is such a gracious God and a loving Father. परिवार सच में परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता है। Let's warmly welcome our dear Pastor Sheldon, and I now hand over this time to you, Pastor. आज हमारा विषय है डिसिप्लिन थ्रू ग्रेस। और आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो अनुग्रह के दौरान अनुशासन है। Are you with me, precious people of God? कितनों को लगता है मेरी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है? And how many of you think that I don't have discipline in my life? Don't worry, क्योंकि आप सही जगह में बैठे हैं। Don't worry, आप बिल्कुल सही जगह पर है। You are at the right. डिसाइपल का मतलब है डिसिप्लिन, और एक चेले होने का मतलब है अनुशासित होना। क्योंकि यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया और उनको साथ में रखा तो इसलिए रखा कि ये चेले उन बातों को सीखे कि मसीह क्या करते हैं और कैसे अपनी लाइफ को जीते। Jesus called disciples, he called them to train and teach them what Jesus does. और यीशु मसीह ने उनको अपने साथ रखा, मिरेकल से लेके, उनकी प्रेयर लाइफ से लेके, उनके कैसे खाना खाते हैं से लेके, फास्टिंग कैसे करते हैं से लेके, फास्टिंग क्यों नहीं करते और फीस्टिंग क्यों करते हैं से लेके, हर चीज को परमेश्वर ने दर्शाया, यीशु मसीह ने दर्शाया। So Jesus demonstrated everything, prayer, fasting, feasting, everything to them, and why did they do it? क्योंकि एक चेला बनना मतलब अनुशासन में रहना। Okay, so becoming a disciple is becoming disciplined. कल सुबह मैं कुछ यूथ्स के साथ बैठा हुआ था, मैंने ब्रेकफास्ट करी इनके साथ में बैंगलोर सिटी में। Okay, in the Bangalore yesterday I was with some youths in the breakfast. I'm sure सिस्टर जैकलिन यहाँ पर है तो जानती है, उनकी दोनों बेटियां मेरे साथ में थी कल, शिफा, सहायता, सनी, और बैंगलोर की एक टीम थी जो है जिसका नाम है सोर, द सोर टीम। Okay, the SOAR team was with me yesterday. और कल सुबह हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो फिर से हम फ्लैशबैक स्टोरीज में गए, चेंबूर मुंबई की स्टोरीज में। And we all went to flashback stories in Chembur, Mumbai. जहाँ पर अगर आप सुबह डिवोशन नहीं करोगे तो आपको ग्राउंड के 10 चक्कर मारने पड़ेंगे। Okay, if you that time if you were not doing the devotion, you'll run 10 rounds. ये एक मिनी बूट कैंप वहाँ पर ऑलरेडी हो रहा था, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं पास्टर इमैनुअल आज खड़े हैं, शिफा, सहायता और इतने सारे जो लोग जो हमारे ट्रेनिंग के अंडर में आए, बिकॉज हमने केवल उनके साथ में उनको ट्रेनिंग नहीं दी, उनको ज्ञान नहीं दिया, लेकिन उनके साथ में लाइफ करी, जिंदगी करी। I mean, so that was a mini boot camp. That's why Pastor Emmanuel, other people came up, and that is how we showed them. Amen. Are you with me? और कई है? बार sometimes it was also rough, but at the same time it was so much love, और इसीलिए ये बच्चे आज भी इतना मानते हैं, क्योंकि ये आज कहते हैं कि किसी ने हमें वैसे नहीं सिखाया जैसे आपने सिखाया, so that kind of a feedback is there even after almost 10 years. Okay, कई बार कठोरता, but they say that the way you taught us, nobody has taught us after 10 years. Hallelujah. और मैं कहना चाहता हूँ जागो परिवार, हम आपके लिए हैं, we're standing with you. और Whether आप young हैं या old हैं या आप जो भी हैं, जिस भी एज में हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप अनुशासन में आए और उसके द्वारा बड़े कामों को करे, और इसलिए परमेश्वर ने आपको एक परिवार में जोड़ के रखा। Okay, whatever age you are, we are with you, and that's why God has brought you so that we can walk in discipline. आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस तरह से चलता हूँ, जिस तरह से अपनी लाइफ को देखता हूँ, जिस तरह से मेरी बाउंड्रीज हैं अपनी लाइफ को इतने टाइट तरीके से, क्योंकि मैंने कई चीज़ें अपने फादर से सीखी हैं। Okay, whatever I've been doing today, God has taught me through many people. One of my मैंने father, बहुत one person. मैंने
कहीं एक बूंद का डाउट नहीं है कि वह मुझसे प्रेम करते हैं नहीं करते हैं. Okay, I don't have a doubt that he loves me or not. मैंने केवल इतना कहा, डैड आई नीड यू, आई एम सेंडिंग यू टिकट. अब मैंने उनसे कहा मेरे को आपकी ज़रूरत है, मैं आपको टिकट भेज रहा हूँ. बस मेरे डैड फादर इमीडिएटली आए और सैटरडे संडे हम लोग साथ में रहे, साथ में सोए, साथ में खाए, साथ में हम लोग धूप में घूमे. And Sunday we were together, we walked and we had a lot of conversations. और ये हुआ है और हो पाया क्योंकि अनुशासन था. बचपन में इतने डंडे, माय डैड रिमाइंडेड मी ऑन द प्लेन यस्टरडे. कल मेरे पिताजी मुझे याद दिला रहे थे कितना मारा है उन्होंने. मेरे डैड ने मुझे बताया, एक चीज याद दिलाई. You remember I brought an expensive camera and you remember what you did with that? और उन्होंने मुझे याद दिलाया मैं एक कैमरा लेके आया था महंगा, तो उन्हें क्या किया था याद है तुझे? मैंने पता है क्या किया था. जब कोई घर पे नहीं था, मैंने लॉकर की चाबी ली, उन लॉकर को खोलकर, कैमरा खोलकर, वो पूरा कैमरा खोल दिया, उसकी R&D कर दी. मेरे डैड ने एक बाइनोक्यूलर्स ना दूरबीन लाया था वहाँ से, गल्फ से, और उसको मैंने खोल के उसका लेंस पूरी धजिया उड़ा दी उसकी. So I just took everything out of the camera and also the other मैं things. 8-9 साल का था, बट R&D मोड मेरा ऑन था. But I was doing all the research, taking all the things out. तो मुझे अभी भी याद है कि इतने डंडे मुझे पड़े थे, बहुत मार पिटाई मेरी हुई थी. और कल हम लोग प्लेन पर बैठ के हंस रहे थे, बिकॉज दिस इज हम लोग 30 साल बाद उस 30 नहीं, मतलब मे बी 25 years लेटर उस स्टोरी को देखकर हंस रहे हैं. And he punished and we were just laughing and just remembering all this. Are you with me, precious family? क्या मेरे साथ है? Amen. अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अनुशासन लाता है. God brings discipline through grace in our lives. और आज बहुत अद्भुत विषय है और अद्भुत बातें हैं. अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अनुशासन ला रहा है. Okay, God is bringing discipline through grace into your life. एक प्रभु के बहुत बड़े जन थे, भक्त सिंह. किसने उनका नाम सुना है? भक्त सिंह. I'm sure many जो आंध्रा से हैं वो डेफिनेटली सुने होंगे. The founder of the Hebron Church, Hebron movement. Okay, the founder of the Hebron Church में एक भक्त सिंह थे. How many of you know him? भक्त सिंह कनाडा में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे. Okay, वो एक he was a student in Canada. और वो सिख थे. उन्होंने काफी सारी बाइबल्स जलाई थी. Okay, he was sick and he was against Christianity. और वो मसीहत के खूब खिलाफ थे. He was against the Christianity. और ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने उनको जॉन और ईडिथ हेवर्ड से मिलाया. Okay, so there were two people, John and Edith. God led him to meet this guy. ये दोनों लोग जो है इन्होंने भक्त सिंह को सुसमाचार ही नहीं दिया केवल. Okay, they didn't just give him gospel. लेकिन भक्त सिंह को अपने घर पर लाया और डिवोशंस करी और एक रूटीन में उनको लाया और उनका जीवन अनुशासन में लाया. Okay, they invited him to home and then discipline and devotion on time, everything on time. प्रियो, पता है आज की कलीसिया में ये चीज मिसिंग है. Okay, today's church this is missing. Okay, I'm not saying any specific church, but आज क्या है कि संडे को आप थोड़ी preaching सुन लो और फिर घर चले जाओ, and then nobody asks you from Monday to Saturday. Okay, Sunday you come and you hear the preaching, and Monday to Friday nobody is able to ask. The Bible says the Acts church was meeting daily. और वचन कहता है कि वो लोग रोज मिल रहे थे बाइबल के अंदर. और तो इसीलिए जागो में हम लोग रोज मिलते हैं. एंड आई एम श्योर जो लोग रोज मिलते हैं, लेट मी सी योर हैंड्स, जो लोग रोज मिल रहे हैं, जो लोग एवरी डे इन्वॉल्व हैं जागो मिनिस्ट्री में, एंड आई एम श्योर दैट नंबर इज गुड, दैट नंबर इज बिग. मैं कह रहा हूँ क्योंकि रोज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. इट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी ओनली इन द फ्रंट, पर जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो प्रेयर में या इंटरसेशन में या फिर डिवोशन में आना जाना, बस बैठना, वचन सुनना और प्रार्थना करना, ये आपकी लाइफ को अनुशासन में लाता है. Okay, I'm not saying you be on the front, but even in the back, you pray, you be in the devotion and do other things in the kingdom. कैसे हम इस पाप की दुनिया में पाप से कैसे बच सकते हैं? is by being in fellowship and being in discipline. Okay, if you are in discipline, you can definitely walk away from the sin. और ये एक मजबूरी नहीं है, ये डंडा लेके नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी बात है कि आप फेलोशिप में रहें तो अनुशासन में आप बढ़ते जाएंगे. Okay, this is not something very hard, but if you are in the fellowship, you will walk away from the sin. ये कर्मों का विषय नहीं है, ये रिश्ते का विषय है. I mean, this is not about works; it is about relationship. I'll say that one more time. ये कर्मों का विषय नहीं, ये आपकी एफर्ट का विषय नहीं, ये रिश्ते का विषय है और इसलिए अनुग्रह का विषय. And that is why we're talking about discipline through grace. Amen. This is not about work; it is about relationship and grace. क्या आप मेरे साथ हैं? So भक्त सिंह को जॉन और ईडिथ हेवर्ड ने कनाडा में डिसाइपल किया, उनके लिए एक एनवायरनमेंट बनाया और उनको
आखिर में उनके साथ में धीरे 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 उनके साथ में काम करते करते 1929 में 1929 में भक्त सिंह प्रभु के पास है, उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया और उसके बाद शुरू हुआ द हेब्रॉन मूवमेंट, जो इंडिया में एक सबसे बड़ा पावरफुल प्यूरिटन मूवमेंट हुआ, आज भी चल रहा है। In 1929, he got saved after a lot of effort of John and Edith, and then Hebron movement started. हालेलुया। और हेब्रॉन मूवमेंट बहुत ही पावरफुल रहा है। मेरे फादर इन लॉ उस मूवमेंट में से आते हैं और शायद इसलिए उनको लगता है मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं भी। So Hebron movement is a big movement. My father-in-law comes from that movement. क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में है घुटनों पर ही वो लोग प्रार्थना करते हैं। Okay, they practice in kneeling down and pray. और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऐसी डिसिप्लिन्स है जो हेब्रॉन मूवमेंट में भक्त सिंह ने लाई उस टाइम पर, जो कि बहुत ज़्यादा शुद्ध था और परमेश्वर की निकटता और बहुत ज़्यादा अनुशासन से रिलेटेड थी। Okay, all these practices are related to discipline and holiness and discipline. Amen. Now every generation the movement of God can change. और परमेश्वर का काम हर एक जनरेशन के साथ बदलता जाता है। God puts focus. Sometimes, maybe just kneeling down may not be the focus, but rather even bringing people into the door might be the focus. और कभी-कभी घुटने टेककर प्रार्थना करना नहीं, लेकिन लोगों को दरवाजे तक लाना काम होगा। और परमेश्वर हर पीढ़ी में एक नया काम करता है, लेकिन अनुशासन को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अनुशासन के बिना कोई सेवा नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, कोई चेला नहीं बन सकता है। Okay, every generation God works, but you cannot miss out the discipline at all. Are you with me? मेरे प्रियो, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? Yes, praise God. कितने लोग मेरे साथ हैं? Come on, somebody write it in the chat. Yes. Without discipline, I am nothing. आमीन। कुछ लोग लिखे कि बिना अनुशासन के मैं कुछ भी नहीं हूँ। I want to tell you कि अनुशासन के लिए ऐसा नहीं है कि कोई वक्त है। ऑफ कोर्स जब हम बच्चे हैं तो बेस्ट टाइम है, लेकिन अगर आप बाद में भी प्रभु के पास आए हैं, एक पाप की जिंदगी छोड़कर प्रभु के पास आए हैं, एक रिटायरमेंट में भी यदि आप प्रभु के पास आए हैं, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट गेटिंग डिसिप्लिन्ड फॉर गॉड। और कभी भी देर नहीं होती अगर हम डिसिप्लिन को शुरू करना चाहे, चाहे हम बचपन में ना कर पाए, लेकिन आज कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू प्रेशियस पीपल ऑफ गॉड, God loves you. मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। I just want to remind God loves you people. I want to tell you we love you so dearly. और मैं आपको बताना चाहता हूँ हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा और इस परिवार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आप सबकी लाइफ में उन्नति देखना चाहते हैं, सबको वेल सेटल्ड, वेल मल्टीप्लाइड, अबाउंडिंग, भरपूरी से आगे हम देखना चाहते हैं। We want to see you guys flourish like anything. इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। हम कभी नहीं चाहते कि that this ministry expand at the cost of people, but this ministry should be a blessing to people. और ये सेवकाई किसी की जिंदगी के ऊपर नहीं बननी चाहिए, बट लोगों के लिए आशीष बननी चाहिए। कितने लोग मेरे साथ हैं? Somebody say hallelujah. कुछ लोग कहे हालेलुया। पौलुस की जीवन में हम देखते हैं 1 कोरिन्थियों 15:9 और 10 में वो एक बहुत गंभीर और एक बहुत पावरफुल बात को कहता है। और पहले कोरिन्थियों उसका 1 और 9-10 में पौलुस ऐसा कहता है। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God, but by the grace of God, I am what I am. And his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. और यहाँ पे कहता है क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह जो मुझ पर है हुआ है। Amen. इस भाग को आप मार्क कीजिए प्लीज, somebody take this and ये मेरा एक सबसे फेवरेट भाग है, जो मैं काफी समय से 10 साल से भी ऊपर ये मेरा एक फेवरेट भागों में से भाग है। Okay, I want you to just highlight it. This is one of the favorite part of mine for years. और ये हमेशा ये वचन मुझे हमेशा याद दिलाता था कि पौलुस ने कितनी मेहनत करी और कितने अनुग्रह से मेहनत करी। Okay, this word always reminded how gracefully he worked hard. और मैंने इसको अपने जीवन में ग्रहण किया और अपनाया बहुत पहले। Okay, long back I just received it in my heart. एक समय में मेरे फादर मुझे कहते, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा आलसी इंसान है तो वो तू है। So my dad used to call me one of the most biggest lazy person in the world. I don't know if it was true, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा
मैं बहुत स्लो था, स्पेशली कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑफ ड्रग्स एंड ये, तो मुझे अपने पैर घसीटने में टाइम लगता था. इट वाज जस्ट वेरी डिफिकल्ट. I don't know it was true or not, but I was pretty slow, that I really know. लेकिन मुझे नहीं पता कि पिछले 20-22 साल, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि कैसे मैं किस स्पीड में आगे बढ़ते हुए आगे गया हूँ और कितनी सारी चीज़ें, मैंने लुक बैक, इतना सब कुछ हुआ है और आज भी मैं थका नहीं. इफ़ यू आस्क मी आर यू टायर्ड, आई विल से नो, आई फील फ्रेश एंड मैं अभी भी दौड़ सकता हूँ उसी रफ्तार में, उसी स्पीड में. Amen. I don't know how, but God led me 22 years leaving all the things behind, and today I am fast and I can really run faster. A total transformation. आप लोगों के जीवन में मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को लगे कि I am slow, I am this, I'm that, I'm telling you, the grace of God will transform that into discipline. और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप कहते हैं आप स्लो है, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको बदल देगा. यदि आप कोई बैकग्राउंड से आते हैं, ड्रग से या कोई ट्रॉमा से, कोई पास से, कोई चीज़ से, परमेश्वर उन चीज़ों, यदि आप रेडी हैं, somebody say I'm ready, चैट में लिखो I'm ready, तो परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको बदलेगा. Okay, if you come from a background of trauma, drugs or anything, God will change you and say that I am ready. और परमेश्वर आपको ऐसे दौड़ाएगा, ऐसी चीजें करवाएगा आपसे जो कि नॉर्मल इंसानों से असंभव है. And God will make you do things that is not possible for a normal person. ऐसे लोगों को लोग जल्दी से टाइटल दे देते हैं लिविंग लेजेंड करके. And people will call them living legend. कई लोगों ने मुझे ये टाइटल्स यूज किए हैं. कई बार लोगों ने कहा, but I'll tell you something, it's not me, it's not my effort, but it's the grace of God that has always worked through me. कई लोगों ने मुझे ये टाइटल दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर का अनुग्रह है. और मैं कहना चाहता हूँ कि पौलुस यही कह रहा है कि मुझको तो अपोस्टल बोलना ही नहीं चाहिए, मैं हूँ ही नहीं अपोस्टल, मैं तो सबसे कम, क्योंकि Yes, the Paul is saying you should not call me apostle, I'm not worthy enough. क्योंकि अपोस्टल कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा है और उसका भेजा गया. मैं तो उसके साथ में रहा ही नहीं. Okay, he says the apostle is the one who was with Jesus and sent. I was not with Jesus. लेकिन मैं अलग से बना हूं और मैं तो कलीसिया के पीछे लगा हुआ था, उनको डिस्ट्रॉय करने में, उनको सताने में लगा हुआ था. I was one of the persecutor of the church. लेकिन फिर परमेश्वर ने पौलुस को बदला और उसको एक अपोस्टल बनाया. और पौलुस ने उस अनुग्रह को ऐसे फालतू में नहीं लिया. उसने उस अनुग्रह को लेकर उसने कहा, अब क्योंकि मेरी आंखें खुली है, how can I sleep another day without sharing the gospel? But when Jesus showed him and gave him grace, he didn't take it easily and he took it, and he cannot live without spreading मेरे the gospel. प्रियो, अगर परमेश्वर आपकी आंखों को खोलता है, जैसे परमेश्वर ने 22 साल पहले मेरी आंखों को खोला, I cannot sleep without doing something for God's people. I cannot sleep without writing a new song of praise to God. I cannot sleep without sharing the gospel with somebody. I cannot sleep without teaching this with somebody. मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 22 सालों से मैं सिखा रहा हूँ, वचन को सिखा रहा हूँ. Okay, अगर आपको प्रभु ने आपकी आंखें खोली है, तो आप सो नहीं सकते बिना परमेश्वर के काम किए. And I've been doing it for 20 years. मैं जब 19 साल का था, तब मैं 16 साल का. This is not a self glory message, okay? Please आप मेरे को इतना मत सोचो, but I'm just sharing with you how the grace of God helped me. लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, प्रभु ने मुझे कैसे मदद की, मेरे बारे में नहीं है. जब मैं 19 साल का था, मैं 16 साल के बच्चों को सिखा रहा था प्रभु का वचन. When I was 19, I was teaching the 16 years kids. फिर जब मैं 22 का हुआ, तो मैं अपने चर्च के यूथ को सिखा रहा था. फिर मैं जब 24 का हुआ, फिर जब 27-28 का हुआ, तो फिर ये लोग आ गए लखनऊ से और इंडिया से. एंड देन उसके बाद बूट कैंप के द्वारा, उसके बाद और चलता जा रहा हूँ, जागो फैमिली के थ्रू, एंड देन प्रेयर के थ्रू, एंड फास्टिंग के थ्रू. इट्स ऑन एंड ऑन. आई बीन डूइंग दिस फॉर 22 इयर्स नाउ. और आज 22 साल तक से मैं वचन सिखाता जा रहा हूँ कई तरीके के लोगों को. क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, आपकी लाइफ को लेकर उसको अनुशासन में लाता है, उसको कंडीशनिंग में लाता है. उसके बाद वो आपसे बड़े बड़े काम करवाए. He'll scale you up. और परमेश्वर आपको he brings you into discipline and then he will scale you up. Are you with me, precious people of God? क्या हम कुछ सीख रहे हैं? Are you blessed? कितने लोग अब talk to me something, chat में कुछ लिखो, okay? क्या आप आशीषित है, कुछ लिखिए चैट के अंदर. क्योंकि मैं आपके बारे में ये घोषणा कर रहा हूँ कि डिसिप्लिन के साथ आप बहुत बहुत बड़े कामों को करोगे. And I'm just declaring that you will do great things with discipline. और बहुत लोगों को लगता है, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों को लगता है अपने काम के जगह में कई लोग बर्नआउट हो जाते हैं. और कई बार वर्क प्लेसेस पीपल बर्न आउट एंड द प्रेशर प्रूफ. एक प्रेशर होता है अपने आप को साबित करने का, प्रूव करने का. एंड दे हैव अ प्रेशर टू प्रूव देमसेल्व्स.
ओके और इसीलिए लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं इतना डिसिप्लिन हूँ या मैं वो अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ दे पा रही हूँ नहीं दे पा रही हूँ. And people think that am I able to do my best or not? पर मैं कहना चाहता हूँ everybody is unique and everybody has been gifted in a certain area. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सब लोग अलग है और सबको एक एक गिफ्ट मिला है, तोहफा और मिला मैं है। इस चीज को समझता हूँ, मैं इस चीज को पहचानता हूँ, परमेश्वर इस चीज को पहचानता है, समझते हैं. एंड दैट इज व्हाई गॉड डिडंट मेक यू लाइक एनीबॉडी एल्स. और इसीलिए परमेश्वर ने आपको किसी और की तरह नहीं बनाया, प्रभु Thank जानता है। God, thank God, God didn't make you like Sheldon Bangera. Although I hope that you learn some things from it. ओके, आप मुझसे सीखे, मैं चाहता हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद उसने क्योंकि आपको मेरी तरह परमेश्वर ने नहीं मुझको बहुत अनोखी लोड बेयरिंग कैपेसिटी, प्रेशर टॉर्चर बेयर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा. मैं ब्रेक ही नहीं कर, अनब्रेकेबल हूँ, शैतान मुझे तोड़ ही नहीं पा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए. बनाया। God has given me so much capacity of taking things that he is not able to break me. लेकिन वो अनुशासन का दौर भी वैसा रहा है और अनुग्रह का दौर भी, और अनुग्रह भरता जाता है और अनुग्रह भरता जाता है और अनुग्रह भरता जाता है. But the discipline also has been like this, and the grace also has been like this. तो क्या होता है कि जब आप कोई चीज को 20-22 साल से कर रहे हो तो 23 साल में कुछ अलग नहीं टूटेगा. Okay, so if you have been doing this, so in the next year something new will not happen. Somebody write in the chat consistency. कुछ लोग लेके बार बार करना. So I want to tell you, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शायद इतना डिसिप्लिन में नहीं, I'm telling you, आप एक जर्नी पर है और परमेश्वर का अनुग्रह आपकी मदद करेगा. अगर if you or someone says that I'm not disciplined, the God is helping you to become that. Sometimes people say, they struggle in a world of distractions. बहुत सारी distractions है यहाँ वहाँ से. And sometimes people लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा distraction है मेरे को चारों तरफ से. No, आप कुछ करने बैठते हो तो रील्स में इतनी सारी रील्स आ जाती है, 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं. The moment you sit down, the reels come and you waste your 2 hours. Distractions बहुत होंगे आपके लिए, आपके काम में, आपके बिजनेस में. आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उससे बेटर दिखने वाला कोई more interesting business may come. Okay, so if you're working, then some distraction will come and something good and flashy. it'll kill your A game. और आपको वो मार डालेगा वहाँ पे. क्योंकि आप किसी दूसरी चीज के खोज में जाते जाते अपना मेन चीज को भूल जाओगे. Because you will forget what you are doing in search of something else. इसीलिए डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए. That's why you want to be disciplined. सेविंग के लिए डिसिप्लिन चाहिए. You need discipline for saving. इन्वेस्टिंग के लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत है. You need discipline for investing. We need discipline in every area of our life. हमको हर क्षेत्र में डिसिप्लिन की जरूरत Are है. you with me, precious people of God? Amen. लेकिन ये डिसिप्लिन जो है, this does not come through just willpower. और ये सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आता है. लेकिन Does that make sense? Some people think they try to change their habits using their willpower. और कुछ लोग अपनी इच्छा शक्ति से अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं. Okay, willpower का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपने आप को आप बदल सकते हो willpower से, that's fine. So okay, for certain strength you can do it. विल पावर से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, लेकिन उसका प्रॉब्लम यही है कि यू विल बिकम एक्सट्रीमली प्राउड एंड एरोगेंट, और उसके बाद आपको लगेगा कि मैंने ही सब कुछ किया है. I mean, आप घमंडी हो जाएंगे and you'll become somebody says yeah I did it. क्या आपको पौलुस की टोन में कुछ घमंड दिख रहा है यहाँ पे? Are you able to see any proud in the Paulus when Paul says that? नहीं, क्योंकि पौलुस कह रहा है मैं बाकी सब चेलों से ज्यादा मेहनत मैंने करी. Okay, he says that I worked hard among all these people. सोचो, परमेश्वर का वचन कहता है the last shall be the first. और वचन कहता है जो पीछे होगा वो आगे आ जाएगा. और वाकई में पौलुस सबसे आखिर में था, सबसे आखिरी अपोस्टल था. He was the last apostle. लेकिन उसने काम सबसे ज्यादा किया. आप सोचिए, 2/3 of the New Testament is written by Paul. और वचन को भी उसने सबसे ज्यादा लिखा है and वो बहुत मेहनत की उसने. परमेश्वर ने उसको ज्यादा दिमाग भी दिया. Okay, God gave him more wisdom. और परमेश्वर ने उसको ज्यादा सफरिंग्स भी दी. And God also gave him more sufferings. लेकिन परमेश्वर ने उसको ज्यादा अनुग्रह भी दिया. But God also gave him more grace. और परमेश्वर ने उसको ज्यादा अचीवमेंट्स भी दिए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके द्वारा काम कर रहा था. I mean, God also gave him more achievements because of the grace. कई बार अगर ज्यादा दिमाग भी है, I'm not saying all the time, but कहीं ज्यादा दिमाग है तो ज्यादा सफरिंग्स भी है, क्योंकि प्रभु बैलेंस करता है. Okay, many times if you have more wisdom, you will have more suffering as well because God balances. Are you with me, precious people of God? Are you learning something? क्या आप सीख रहे हैं? So some people are trying to change their habits with willpower. कुछ लोग विल पावर से अपनी इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति से अपनी लाइफ को बदलने को देख रहे हैं. Yes, कुछ लोग अपनी इच्छा शक्ति से बदलना चाहते हैं. बहुत सारे यूथ्स फ्रस्ट्रेट होते हैं. I'm trying to do this but then I fall back into this addiction. I'm trying to get rid of this, ये इशू, वो इशू, लस्ट इशू, या फिर फोन एडिक्शन, या फिर बाहर दोस्तों के साथ में घूमना. I want to get rid of this. How do I get rid of this? और कुछ जवान कहते हैं कि मैं बाहर निकलना चाहता हूँ इस लस्ट से, इस समस्या से, लेकिन नहीं निकल. आप इसको विल पावर से नहीं बदल पाएंगे.
You cannot do it with your willpower. आपको अनुग्रह लगेगा. You need grace. You need grace. Amen, precious people of God. Amen. Sometimes people use, the wrong understanding of grace. Some people think grace means I can do whatever I want and God will still love me. और कुछ लोग कहते हैं कि अनुग्रह का मतलब है मैं कुछ भी करूं प्रभु प्यार करेगा फिर अब भी. प्रभु आपसे प्यार करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं, आप उसकी उसके लाइकनेस में बनाए गए हैं, Okay, God समानता loves में. you. It is true because you are His children and you are created in His लेकिन likeness. वो अनुग्रह को वेस्ट में, व्यर्थ में यूज करना will destroy you. But if you use your grace for win, it will destroy you. Are you with me, precious people क्या of आप God? मेरे साथ हैं? कुछ लोगों को लगता है कि my feelings are guiding me and I have a gut feeling about this. मुझे पता है, I have a feeling, and आपकी feelings आपको lead कर रही हैं. और कुछ लोग कहते हैं कि मेरी भावनाएं मेरे को इस तरफ लेके जा रही हैं and they are led by their gut feelings. लेकिन in the long run आप जिसको भी आप देखोगे जो जीत रहा है वो feelings की वजह से नहीं, वो consistency और discipline की वजह से जीत But रहा है. if you see somebody who is winning again and again, they are not winning because of their will, but because of the discipline. अगर कोई ओलंपिक दौड़ने वाला व्यक्ति एक दिन आके उठ के कहा I feel like today I'm going to win. So somebody who comes from an Olympic and say कि आज मैं जीतूंगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है आज की रेस मेरे हाथों लिखी है. Okay, today he says that today I think it is in my hands. Is it going to happen, precious friends? Come on, tell me in the chat. Is it going to happen? क्या ऐसे होता है? लिख के बताइए चैट के अंदर. नहीं होगा. No, ऐसे नहीं लेकिन होता है. क्या होता है अगर ये बंदा रोज प्रैक्टिस करे, रोज मेहनत करे, रोज अपने आप को तैयार करे, रोज उस टाइम्स में अपने आप को ग्राइंड करे जहाँ पे कोई नहीं है, टेक्निक्स को सीखे और काम करे, मेहनत करे और डिसिप्लिन में अपने आप को लाए. और ऐसा करने के लिए आपको स्पोर्ट्स से प्रेम होना पड़ेगा. Okay, but if this guy works on himself, does all the things needed, practice and all the things, it is only possible when you love it. किसी भी चीज में आपको अगर डिसिप्लिन चाहिए, आपको उससे प्रेम होना पड़ेगा. You have to love something to be disciplined in that. तब जाकर आप मैथमेटिकली अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हो कि देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी नाउ दैट आई एम गोइंग टू विन बिकॉज आई हैव पुट इन मोर आवर्स एंड आई हैव पुट इन मोर प्रैक्टिस एंड आई हैव लर्न मोर टेक्निक्स एंड नाउ आई नो माय ब्रेथ कंट्रोल एंड नाउ आई नो हाउ टू मेक इट. Now since you have invested a lot of time, अभी आपको लगेगा कि हाँ क्योंकि मैं इतना कुछ कर चुका हूँ, अब मैं जीत सकता हूँ. मेरा एक बहुत करीबी फ्रेंड है और बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन है, उसने एक बात कही थी एक बार. Okay, I have a friend who is very talented musician. Your talent will drop you off at a location. और उसने कहा कि आपका टैलेंट आपको एक जगह पे छोड़ देगा. लेकिन आप उस लोकेशन से आपको कहाँ जाना है वो केवल आपका डिसिप्लिन आपको ले जाएगा. और आपका अनुशासन ही दिखाई देगा कि आपको where you have to. हो सकता है किसी के पास एक टैलेंट है, बहुत लोगों के पास अलग अलग टाइप्स के टैलेंट्स हैं. Okay, गिफ्ट्स people हैं, have a वरदान lot है, of talents and gifts. लेकिन वो केवल आपको एक पोजीशन तक लाकर वहां पर छोड़ देगा. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह लेकर आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाकर आगे बढ़ना है. And it will drop you somewhere, but then you have to get the grace and walk into discipline. Are you with me, precious people of क्या आप God? मेरे साथ हैं? Okay, I want to share a couple of quick things on discipline. और जल्दी से मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ डिसिप्लिन के ऊपर. अब ग्रेस, पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ था और इसलिए मैं ज्यादा मेहनत कर पाया. Okay, Paul is saying that because of the grace I could work hard. आई एम डिक्लेयरिंग ऑन जागो फैमिली राइट नाउ. जो लोग देख रहे हैं इस वक्त मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आप जो है वैसे ही काम करोगे जैसे पौलुस कह रहा है. प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप बहुत बड़े बड़े कामों को करोगे जो आम लोग नहीं कर पाते हैं. And I'm declaring that you will do greater things and you will do things that normal people cannot. हालेलुया. अब आपको केवल उस ग्रेस को रिसीव करना है. You just have to receive the grace. वो ग्रेस परमेश्वर से आता है काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, सुबह उठने के लिए, मिनिस्ट्री का काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, प्रेयर फोर्स के लिए, सभी लोगों के लिए वो अनुग्रह परमेश्वर से आते रहता है. For everything that grace comes from God to do all the things with discipline. Amen. Just imagine कि इस तरह से सोचिए हर रोज एक स्वर्गदूत आकर आपके घर के सामने या अपने दरवाजे पर एक बड़ा बैग ग्रेस का छोड़कर जा रहा है. Okay, it is like that one angel comes and gives a big bag of grace every day to you. और आपको क्या करना है, सुबह उठकर एक कप चाय या एक कप कॉफी के साथ में परमेश्वर के साथ में बातें कर करके उस ग्रेस को पूरी तरह से ब्रेकफास्ट के साथ में खा जाना है. Or you have to do one thing, you have to get up and sit and spend time with the Lord and take that grace. आपको वचन लेना है, घोषणाएं करनी है परमेश्वर के साथ एकांत समय में. हर रोज वो बैग लेकर आपको
वो अनुग्रह अपने जीवन में लेना है। You have to take that grace and you have to speak the word and just grow into it. अब सोचिए, पहले दिन पर आपने किया, आपने वो बैग ले लिया, Okay, first day you took the bag. दूसरे दिन पर ले लिया, तीसरे दिन पर ले लिया, चौथे दिन पर आप भूल गए, थोड़ा लेट उठे, Okay, you woke up late on the fourth day and you didn't receive the bag. और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिस करने लगे। And sir, eventually you started missing it. तो फिर एक महीने में जहां पर आपको होना चाहिए था 30 दिनों में, आपने ग्रेस ले लिया 15 दिन का, और 15 दिन का छूट गया। So you just took the grace for 15 days and you left for 15 days. तो आपसे वो 15 दिन की जो क्षमता है, वो क्षमता के हिसाब से काम होगी। Okay, you'll be only work with the 15 days grace. This is not about how many hours you're praying, okay? ये वो नहीं है कि मैं 24 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ। Okay, it is not about कि कितने घंटे आप प्रार्थना करते हैं। It's just about taking that measure of grace every day and implementing it in your daily और life आप and सिर्फ walk. अनुग्रह ले रहे हैं और अपनी जिंदगी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के साथ वचन और प्रार्थना के द्वारा आप उसको ले सकते हैं अपने सिस्टम में आत्मिक तरीके से, You can take it with prayer and word. क्योंकि वो हर दिन के लिए नया है, क्योंकि परमेश्वर का काम भी नया है, और परमेश्वर हमेशा शैतान को कंफ्यूजन में रख रहा है। Okay, God keeps Satan in confusion and gives everything new every day. Are we learning something? क्या हम कुछ सीख रहे हैं? Yes, amen. क्या हम सीख रहे हैं? परमेश्वर हमेशा, God is all wise and he's a God of wisdom and he's always confusing the enemy. और परमेश्वर एक बुद्धिमान परमेश्वर है और वो हमेशा शैतान को कंफ्यूज करके रखता है। ओके, तो इसीलिए परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है। आपको अनुग्रह लेकर अपने जीवन में उसको यूटिलाइज करना है रोज। So you have to take a grace and then utilize it. जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास 30 दिन है और अगर आपने 15 दिन का अनुग्रह पाया और 15 दिन का आपने यूज किया, तो 15 दिन का एक्सपायर हो गया, आप उसको यूज नहीं कर पाए। Okay, as I told you that if you have taken only 15 days, the 15 days would be expired. लेकिन यदि कोई और जन आता है और 30 का 30 दिन अनुग्रह लेता है, तो मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। देखिए, सुनिए। Okay, if somebody takes 30 days, then what will happen? आपका बगल वाला, आपका फ्रेंड जो है, जो दूसरा पास्टर है, जो दूसरा अपोस्टल है, जो वो और अनुग्रह लेते जा रहे हैं फॉर 30 डेज, और वो काम करते जा रहे हैं, अपना काम डबल कर रहे हैं। तो सुनिए, आपका जो बचा हुआ 15 दिन का अनुग्रह, वो भी परमेश्वर उनको एक बोनस डे में दे देंगे। Amen, amen. The person next to you, if he is disciplined, taking all these 30 days, your 15 days would be added to him, rewarded to him. मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन इज द रिजल्ट, ग्रेस इज द इनपुट। सुनिए, ओके, तो ध्यान से सुनिए, जो अनुग्रह है वो देने के लिए, और जो बाहर निकलता है वो है मेनी पीपल प्रीच डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन। कैसे? But people say that be disciplined, but how? You need to understand discipline is the output, grace is the input. ग्रेस जो है वो अंदर जाता है, तभी अनुशासन बाहर आता है। तो जैसे मैंने कहा, एक स्वर्गदूत आकर आपके घर पर रोज एक बैग छोड़ रहा है जिसका नाम है ग्रेस, जिसका नाम है अनुग्रह, उस दिन के चैलेंजेस से डील करने का अनुग्रह। ओके, दैट द एंजल कम्स एंड पुट्स अ बैग व्हिच इज फॉर द डे। यदि आपने उस दिन को मिस कर दिया, तो आप उस दिन के अनुग्रह में नहीं चल पाएंगे, अगला दिन और चिड़चिड़े हो जाएंगे, एंड देन द नेक्स्ट डे, एंड देन फिर कुछ दिनों के बाद आप कहेंगे बर्नआउट। If you don't take that, then after next day you'll be irritating and then it'll burn out. Yes, लेकिन अगर आप उस दिन का ग्रेस लेंगे और उस दिन का काम करेंगे, अगले दिन का ग्रेस लेंगे, तो परमेश्वर आपका काम को डबल करेगा और ट्रिपल करेगा और आपकी ग्राफ ऊपर जाती जाएगी। Amen. But if you take the grace every day and work on it, your graph will go up. Does that make sense? क्या हम कुछ सीख रहे हैं? क्या कुछ? Somebody write in the chat, मैं परमेश्वर का अनुग्रह रोज ले लिया करूंगा। कुछ लोग लिखिए कि मैं रोज परमेश्वर का अनुग्रह लूंगा। I'll take बिकॉज उससे आप बहुत बढ़कर आगे जाएंगे। और यही पौलुस कह रहा है। पौलुस पता है क्या कह रहा है? This is what the Paul is saying. कि बाकी सब भी apostles हैं, हम सब एक ही गली में रहते हैं। He says that we live in the same street, all the apostles. लेकिन पता नहीं उन्होंने अपना रोज का ग्रेस लिया या नहीं लिया, लेकिन मुझे पता है कि मैंने उस सबसे ज्यादा काम किया है, तो मैं क्या मानूं? मैं यही मानूंगा कि शायद उनका ग्रेस मेरे पास आ गया थोड़ा थोड़ा। He says that I worked hard, so I believe if they haven't taken, it is added to me. Does that make sense? क्यों ऐसा नहीं हो कि पतरस ने दो तिहाई गॉस्पेल, 2/3 न्यू टेस्टामेंट नहीं लिखा? क्यों ऐसा हुआ? Why did not Peter write it? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि मत्ती ने पूरा जो है 2/3 गॉस्पेल नहीं लिखा? और सबसे ज्यादा ट्रैवल जिन्होंने किया वो है पौलुस।
Okay, nobody has traveled like Paul, and they haven't written. सबसे ज्यादा जेंटाइल देशों में जो है, अन्य जातियों के देशों में जो जाने वाला व्यक्ति है वो है पौलुस. The Paul is the one who went to Gentiles. सबसे ज्यादा सफरिंग जिस पर आई वो है पौलुस. सब लोग के साथ में सफरिंग्स हुई, लेकिन पौलुस के साथ में तो खुलेआम बहुत बार वो मारा गया, पीटा गया. The one who suffered the most is the Paul. Everybody got suffered, but he is the most. सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, मिनिस्ट्री का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जिसका हुआ वो था पौलुस. Okay, the one who impacted the most is the Paul. पौलुस यही कह रहा है कि आपने इस भाग में पढ़ा, इसलिए मैं कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट भाग है, इसको पढ़िए और ध्यान से, कि मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी. Okay, that's what he says, that I worked very hard. And I'm not just saying that this is, ये केवल मेहनत के विषय में नहीं. It could even be in the realm of prayer. It could even be in the realm of just जो आप प्रार्थना करते हो, ये सुसमाचार सुनाते हो या मिनिस्ट्री का काम करते हो. You need grace in every area. Okay, this is not about prayer, but it is about every area that you can do. So, number one, I want to tell you 3 things, quick things I'm going to tell you. Amen. I hope you're blessed so far, because I'm really blessed by even like the Holy Spirit sharing this word. मैं बहुत blessed हो रहा हूँ. And I'm blessed because I'm sharing it, and I believe you are blessed. Okay. Grace is a call to a higher standard, not a license to sin. और जो अनुग्रह है ना, वो आपको ऊपर ले जाने के लिए, पाप करने के लिए नहीं है. क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with us, people? Okay, so somebody write in the chat a call to a higher standard. और कुछ लोग लिखे कि ऊपर जाने का एक कार्य. Hallelujah, praise be to God. जब हम ग्रेस को रिसीव करते हैं अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ाता जाता है. Okay, when you receive grace, God will raise your standard. ग्रेस का मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड गिर गया. Okay, it is not like your standard comes down. ग्रेस का मतलब है कि स्टैंडर्ड आपका बढ़ गया. The grace means your standard has gone up. यीशु मसीह ग्रेस से आए, अनुग्रह से भरकर आए. Okay, Jesus came with full of grace. और ओल्ड टेस्टामेंट में जो लॉज दिए थे, लोगों को वैसे ही नहीं वो जिया जा रहा था. Okay, the people in the Old Testament, they were not able to follow. लेकिन जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने कहा ये तुम्हें को स्टैंडर्ड लगता है, तो स्टैंडर्ड ये नहीं है, स्टैंडर्ड ये है. Okay, when Jesus said and came and said, this is not the standard, this is the standard. एक तरफ से Jesus loves also so nicely, but he's setting such a higher standard. How are these two things possible? Okay, Jesus is loving, but at the same time putting a higher standard. ये कैसे होगा? अरे मुझे लगा जो आदमी मुझसे प्रेम करता है वो मेरे सारे faults को झेल लेगा. Okay, I thought that the one who loves me would always bear my all the faults. Absolutely, Jesus loves the people. इसलिए यीशु मसीह जब आते हैं, the Bible says he came full of grace and truth. Okay, that is true that God loves you, and that's why Jesus came full of grace. तो इसीलिए, लेकिन यीशु मसीह बार-बार कहते हैं, he says, You have heard, तुमने ये सुना है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर तुमने ये भी किया तो भी तुमने पाप कर दिया. Okay, that's why Jesus said, you have heard this, but if you do this, you'll sin. यीशु मसीह ने स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया. So Jesus has raised the standard. साथ में प्रेम का स्टैंडर्ड भी बढ़ा दिया. Okay, he has also raised the standard of love. जब यीशु मसीह ये चीजों को बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, किसी को बुरा नहीं लग रहा है. Nobody is getting offended when Jesus. सिर्फ फैरिसी लोग बुरा मान रहे हैं. Only the Pharisees are getting offended. क्योंकि उनको लगता था हमारी धार्मिकता बहुत अच्छी है. Because these people think that they are very righteous. अब यीशु मसीह 2 काम कर रहे हैं, एक तीर से 2 निशान. Okay, today Jesus is doing 2 things together. एक तो सब लोगों को इतना प्रेम कर रहे हैं, he loves everybody, everybody feels loved. और सब लोग को प्यार करते हैं, सब लोगों को प्यार. दूसरी साइड में स्टैंडर्ड को भी बढ़ा रहे हैं और ग्रेस के स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं. At the same time, he is raising the standard and also grace. Because it is through relationship, not through works. क्योंकि ये काम से नहीं, रिश्ते से है. क्या आप मेरे साथ हैं? You with me, precious people? Yes, I am with us people. जब हम रिश्ते के साथ में काम करते हैं लोगों के साथ में, तो we give them time and we work with them and we keep working with them 1 decade, 2 decades, 3 decades sometimes, but they will come around. और जब हम लोगों के साथ रिश्ते में आते हैं, तब हम उनके ऊपर काम करते हैं. जब आप अपने घरों में अपने बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, अपने पतियों के साथ में, अपनी वाइफ्स के साथ में, you have to understand that give it time, grace will bring them to where they should be. Amen. Okay, and so this is like you are spending time with your family. It is when you give time comes in relationship, God gives where they have to get. Hallelujah. कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग आप are you with us people? Amen. एक यदि आप एक क्रिकेट गेम खेल रहे हो. Okay, if you are playing cricket. तो परमेश्वर सोचिए कि आपका एक कोच है. Okay, you have a coach. और आप एक मैच के बीच में एक बहुत बड़े कैच को आप छोड़ देते हो. You miss a catch. You drop a catch in between the match. Very important catch. और इससे पूरी टीम एक टूर्नामेंट हार जाती है. So the team has lost the tournament. Okay.
अब आप डरे हुए हो क्योंकि कोच में कैंसिल यू, नेक्स्ट टाइम आपको खेलने नहीं देंगे, So you're afraid that coach will not allow you to play next time. और आपको लगता है कि वो आपको आकर कहेगा हे इतना बड़ा आलसी है, हमेशा कैच छोड़ते रहता है. So you are afraid that he would come and say you drop the catch every time, lazy. लेकिन वो कोच वापस गेम के बाद आकर बैठकर एक शब्द नहीं बोलता है. But that coach comes and says no word. बट प्रेम से पूरी टीम के साथ में हैंडल कर रहा है इस चीज को. But he is handling everything with love. और कहता है फ्रॉम टुमारो प्रैक्टिस स्टार्ट्स एट 5 AM. और वो कहता है कल से 5 बजे सुबह प्रैक्टिस शुरू होगी. हालेलुया. क्या आप मेरे साथ हैं? Are you उसने with कुछ us? भी नहीं कहा, आपके कैच छोड़ने पर आपको कुछ नहीं कहा, आपको चिल्लाया नहीं, डांटा नहीं, बस उसने ग्रेस को बढ़ा दिया, ट्रेनिंग को बढ़ा दिया और आपको आगे नेक्स्ट लेवल पर ले गए. He didn't shout, he didn't scold, but he upgraded the training. He increased the training time. आमेन. क्या आप मेरे साथ हैं? और ये कह रहा है कोच अपने ऊपर उस जिम्मेदारी को लेता है. And now he's taking responsibility on himself. और the कोच coach. कहता है आई विल ट्रेन यू मोर एंड आई विल वर्क विथ यू मोर. Amen. And he says that मैं और सिखाऊंगा और आपके साथ और रहूंगा. मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे साथ में ऐसा ही करते हैं. Jesus does the same, people. He takes the responsibility for your sin, for your faults upon him, and he works with us to make us better. आमीन. प्रभु हमारे साथ काम करता है हमें बेहतर बनाने के लिए और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हमारे काम. आप ये मत सोचिए कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया, जो भी आप करोगे धरती पर फाइनली आपको बस वो खाली बैठ के बुक देखने वाला है और आपका रिकॉर्ड लेने वाला है. Okay, just don't think that Jesus has left you and when you go he will just. आपको आइडिया नहीं है, जब आप सुबह उठते हैं जिस साइड से करवट बदलते हैं उस साइड में प्रभु पहले से आपको भरा हुआ है टू गिव यू स्ट्रेंथ फॉर द नेक्स्ट डे. Amen. God is there to give you strength. आपको नया सामर्थ देने के लिए तैयार है. कितने लोग इस चीज को फील करते हैं कि आई हैड सच अ बैड डे यस्टरडे बट टुडे इज सच अ गुड डे. मुझे नहीं पता इसका साइंस क्या है. आमीन. कल बहुत बुरा दिन था लेकिन आज अच्छा है. कितने लोगों को ऐसा. The word of God says in Romans 6:1 and 2, shall we go on sinning so that grace may increase? और यहाँ पे लिखा है रोमियो उसका 6:1 में, क्या हम पाप करते रहे ताकि अनुग्रह बढ़ता रहे? By no means, we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? लेकिन बिल्कुल नहीं, हम पाप के लिए मर गए हैं तो अब इसमें कैसे जी सकते हैं? हालेलुया. मतलब अनुग्रह आपको नीचे की तरफ नहीं, अनुग्रह आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा. Okay, that means grace will take you up, not down. Amen. I want to prophesy and declare over you that grace is taking you higher and higher into discipline. और आपके ऊपर घोषणा कर रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अनुग्रह आपको ऊपर लेके जा रहा है. और ऊपर ले जा रहा है, और ऊपर ले जा रहा है, और ऊपर ले जा रहा है. It is just increasing your level and और standard. धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो अनुग्रह आपको ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां पर दुनिया के जो टॉप परफॉर्मर्स है आप उनसे बेटर परफॉर्म करोगे. Amen. वो आपको वहाँ पे it will take you there where the big performers you will better मेरे perform. प्रियो, यीशु मसीह के चेले अनस्कूल्ड थे, मतलब क्या कहते हैं उसको, अनपढ़ गवार थे. यीशु मसीह के चेले अनपढ़ गवार थे. All the disciples of most of the disciples of Jesus were illiterate. आज उन गवारों पर इतनी किताबें लिखी गई हैं. But today that these people are the topic of so many उन books. गवारों के द्वारा उन गवारों ने इतनी किताबें लिखी हैं. Okay, these illiterate wrote a lot of letters. आमेन. और मेरे प्रियो, हम उन गवारों की पत्रियों को पढ़ रहे हैं. And today we are reading all these illiterate people. हमारा जीवन बदल रहा है. उसी रीति से मेरे And प्रियो, it is आपकी changing जो our भी lives. कमियां हैं कभी नहीं गिनी जाएगी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर गिना Okay, जाएगा. your faults will not be counted, but the grace would be given to you. Hallelujah. Are you with me, Hallelujah. precious people क्या of आप God? हमारे साथ हैं? God brings discipline. Second thing I want to tell you is tapping into God's strength, not your own strength. और परमेश्वर की सामर्थ में बढ़े, अपनी ताकत में नहीं. मैंने जैसे कहा, ग्रेस इज द फ्यूल. यू हैव टू रिसीव द फ्यूल एवरी डे. और आपको हर दिन वो लेना पड़ेगा अपने अंदर ग्रेस. कैसे आप उस फ्यूल को पाओगे? जब आप प्रभु के साथ में समय बिताओगे तो उस फ्यूल के द्वारा आप, और वचन को जब आप ग्रहण करोगे और वचन की घोषणाएं करोगे और संगति में रहोगे, वो उस अनुग्रह को डेली आप रिसीव कर पाओगे. Okay, if you are in the fellowship and declare the word and receive the word, you will be in the fellowship and get देखिए, शैतान आपके दिन में गड़बड़ी लाना चाहता है, आपको इमोशनल ट्विस्ट में ले जाना चाहता है, आपको ओवर थिंकिंग में और आपको डिस्ट्रैक्शंस में ले जाना चाहता है ताकि आप उस ग्रेस के बैग को ले नहीं पाए. Okay, enemy wants to bring distraction and emotional problems so that you can get distracted. और धीरे 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 आपको फिर बाहर निकालना चाहता है. And then he wants to get you out. That's how he plays with our seasons.
और वो ऐसे ही काम करता है हमारे जीवन लेकिन में। अगर आप लोगों को देखेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, स्पेशली जो लोग सीनियर है सेवा में, एक चीज उन्होंने सीखी अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन को कल्टीवेट करना, प्रभु के साथ में समय बिताना। If you see the senior people, the people who have done a lot, one thing you will learn is the discipline. जैसे कल जब मैं पास्टर राम बाबू को मिलने गया था, उन्होंने कहा सैटरडेज नॉर्मली आई डोंट मीट एनीबॉडी, आई लॉक माई सेल्फ अप इन अ रूम एंड आई जस्ट सिट एंड प्रे एंड स्पेंड टाइम विद गॉड। Yesterday when I met Pastor Ram Babu, he said Saturdays I don't meet anybody. मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, अपने आपको बंद कर देता हूँ, प्रार्थना एंड ये करता चीज मैंने भी अपनी लाइफ में सीखी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ एंड कीप माई फोकस ऑन द डिसिप्लिन्स एंड प्रेयर लाइफ एंड अराउंड गॉड, सो नोबडी कैन एंटर दैट स्पेस। हूँ। Amen. और मैंने भी ये सीखा है कि मैं किसी को किसी भी चीज को अंदर ना आने दूं और एक फोकस रहकर काम करूं। बहुत लोग मुझे बुलाते हैं बट 99% ऑफ द टाइम्स आई से नो। और कई लोग दे कॉल मी बट आई डोंट से नो 99% टाइम्स। Literally 99% of the times I say no to everything. ओके ऐसे मैं कई लोगों को मना कर देता हूँ 99% बार। मेरा फोन बजता है, आप मेरे फोन को देखोगे तो कम से कम लाइक हर रोज के इतने सारे रेड कॉल्स हैं, मतलब मिस्ड कॉल्स हैं। Okay, if you see my mobile, you will find so many missed calls. 99% of the calls I don't pick up. I don't pick up 99% No calls. bank वाला, no insurance वाला, no this, no time waste. और मेरे को कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। Amen. क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि we are tapping into God's strength, not our own strength. और हम परमेश्वर की ताकत में जा रहे हैं, अपनी ताकत और में परमेश्वर की ताकत को पाने के लिए परमेश्वर के साथ में समय बिताना पड़ेगा। नहीं। We have to spend time with the Lord to receive this जैसे power. मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था कि यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे। Okay, I shared that Jesus is walking on the water. आफ्टर डिस्पर्सिंग द क्राउड, पूरे क्राउड को उन्होंने भेज दिया, चलो 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 एवरीबडी गो होम नाउ। He sent everybody. चेलों को भी डिस्पर्स किया, चेलों को भी बोला तुम लोग भी बोट में बैठकर आगे निकल जाओ, मैं आ रहा हूँ। And he said that go into the using फिर the boat यीशु and I'll मसीह come. कहाँ गए? यीशु मसीह गए पहाड़ पर, And then Jesus went on the mountain. और माउंटेन से उन्होंने अपनी बैटरी को चार्ज करना शुरू किया। Okay, then he charged his battery through prayer. और प्रार्थना के द्वारा बैटरी चार्ज करते करते यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। Yes, and he was into heaven at that क्योंकि time. स्वर्ग में आदमी उड़ भी सकता है, तैर भी सकता है, चल भी सकता है, पानी पर भी चल सकता है, कुछ भी कर सकता है। स्वर्ग में देयर आर नो लिमिटेशन। Because in the heaven there is no limitation, the person can अब वो float प्रार्थना and की do स्थिति से माउंटेन से नीचे आए everything. And then from the same state he came down. और ऐसे ही देखते देखते पानी पर चलने लगे बोट की तरफ, लाइक अ सुपर हीरो। And like that he started walking on the water like a super. What is that, precious people of God? That is called grace. और वही है अनुग्रह। वो है अनुग्रह जो आम इंसान नहीं कर सकता है, वो आप कर सकते हो। और यीशु मसीह ने पतरस ने देखो, अरे ये कौन है? प्रभु है, अरे मुझे भी चलना है, मुझे भी प्लीज, मुझे भी बुला, अगर तू प्रभु है तो मुझे भी चलवा मुझे। और यीशु मसीह कहता आजा, एक ही शब्द आजा। And Peter also says I want to walk and Jesus says okay come. और पतरस वो पहला चेला होता है यीशु मसीह के अलावा जो पानी पर चलने वाला व्यक्ति हुआ। Peter becomes the first disciple who walked on the water. Precious people of God, I declare over you in your lifetime कि आपके जीवन में आप ऐसे काम करोगे जैसे कि पानी पर चलना, कि जहाँ पर impossible situation है वो चीजें आप करोगे। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप you'll do things which are not possible. इस वक्त for परमेश्वर normal. हमारे थ्रू भी इम्पॉसिबल चीजें करवा रहे हैं, जैसे बैंगलोर का जो प्रोजेक्ट है, और जैसे लखनऊ का प्रोजेक्ट है, और जैसे पूरे इंडिया का और पूरी दुनिया का प्रोजेक्ट। इट्स इम्पॉसिबल बट आई एम बिलीविंग गॉड। आई डोंट वांट टू लिव द ऑर्डिनरी लाइफ। Amen. God is taking us through many different things and getting all these हम things लोग done by us. ऑर्डिनरी के लिए बनाए ही नहीं गए, हम लोग ने हमेशा तोप काम ही किया है। Amen. We are not created for ordinary things. अब बचपन से हम तोप चीजें ही कर रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से, और आगे भी तोप चीज ही करेंगे, तोप काम करेंगे। We have been doing extraordinary and we'll be doing it. कम ऑन माय प्रेशियस पीपल ऑफ गॉड, माय फैमिली, आर यू विद मी? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Yes, are you able to hear us? अब चाहे आप 60 साल के हो, चाहे आप 70 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, आप फिर भी तोप काम ही करोगे। डिक्लेयर एंड प्रोफेसाई हुई। इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग टू ओनली यंग पीपल हियर। मैं यहाँ पे सिर्फ जवानों की बात नहीं कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, आप किसी भी I'm उम्र में talking हो, to आप all the extraordinary काम great करोगे। people of God. I call you great, And great मैं आप saints लोगों of को God. महान बोल रहा हूँ यीशु के नाम मैं से। आपको लिटरली महान कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि प्रभु का अनुग्रह आपके द्वारा करेगा, आपको अनुशासन में लाएगा। I'm saying the Lord's grace will I don't believe in that, preaching with a danda. I don't believe in that. Yes, मैं विश्वास नहीं करता कि एक छड़ी लेके प्रचार करो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के it has to be, it's fun, it is chill, it is amazing, there is laughter, there is conversation, there is everything with the Father, with God. और मैं It's a विश्वास करता हूँ great परमेश्वर के journey. साथ सारी बातें ऐसी होनी चाहिए। अगर ये जर्नी बोरिंग हो जाए तो ये धर्म हो जाएगा। Yes, if it becomes boring, it becomes बट ये religious. जर्नी बोरिंग है ही नहीं।
ये आपकी गलतियों से कोई संबंधित ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर कभी कभार जब आप एक रफ सिचुएशन से हो रहे हैं ना, तो परमेश्वर एक्चुअली कहेगा कि आई एम इंक्रीजिंग मोर ग्रेस इन योर लाइफ, तुझे और चैलेंजेस में दे रहा हूँ. Okay, if you are going into the difficult time, he would add more and says, I will give more. आपको लग रहा है प्रभु मुझे थोड़ा सा विश्राम दे. And you will say, Lord, give me some rest. God says no rest, I'm increasing double work, double shift now for you. And God says, no, I'm increasing your shift. And you say, Lord, how can I do? मैं तो सिंगल शिफ्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, डबल शिफ्ट कैसे करूँगा? And you will say that, Lord, how will I do? I'm not able to do the single God shift will also. say, उसके लिए मैं कल एंजल आके 2 बैग छोड़ के जाएगा. God says, I'll send angel with 2 bags tomorrow. 2 bags of grace. कल से don't forget to receive. सुबह 5 बजे उठ के वो ग्रेस ले लेना. दोनों बैग. भूलना मत सुबह उठ के, just take the 5. This is the point where some people actually lose their season or they miss their season because God is actually pushing them into extra and they actually are saying, no, हम प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सकते, उधर बहुत सारे giants है. Okay, यहीं पर है लोग says that people say that okay we will not be able to do. But don't worry, God is a loving God. God is a compassionate God. वो detour मार के Google Maps की तरफ फिर से आपको ट्रैक पे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा. But God will make you to take a U-turn and bring you back. अरे Google Maps को इंसान ने बनाया, सोचो. The Google map is created by human. Google Maps फिर भी आपको सही रास्ते पे पहुंचाता है. But it still guides you to the right place. क्या परमेश्वर Google Maps से बड़ा नहीं है? Amen is not God or God. क्या परमेश्वर आप अगर रास्ता एक गली अगर आपकी छूट गई, क्या परमेश्वर वापस आपको रास्ता पे नहीं ला पाएगा? If you miss a street, God will bring you back. Somebody write in the chat, my Jesus is better than Google Maps. Amen. कुछ लोग कहें कि मेरा प्रभु Google Map से अच्छा है. Come on, write it. Come on, you guys need to be excited. This is such a nice thing. Amen. आपको excited होना चाहिए. अच्छी बात कर रहा हूँ मैं. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen, precious people of God. अगर आप सोचिए एक बहुत बड़ी गाड़ी है. Okay, just see a big car. और वो गाड़ी आपकी जो है सड़क के बीच में ब्रेक डाउन हो गई. If वो गाड़ी खराब हो गई है सड़क के बीचों बीच. और आप गाड़ी से निकलते हैं और आप कोशिश करें, especially if it's a female driver trying to push the car and trying to make it happen. Okay, if you come out and just push it with your own strength. तो क्या होगा? Will the car move? Will it move? No, it can't move because you're too weak. आप अकेले उस बड़ी गाड़ी को नहीं हिला सकते. Alone you cannot do it. Maybe if it's a big bodybuilder, he might be able to do it थोड़ा बहुत, but फिर भी ज़्यादा दूर नहीं. कोई बहुत तगड़ा होगा तो थोड़ा बहुत कर पाएगा, but not for a long. लेकिन सुनिए, अगर आप गाड़ी से निकलते हो तो तुरंत 4-5 लोग आते, especially if you are in India, anybody will come to help you to push your car. Yes. लेकिन अगर आप भारत में हैं तो 4-5 लोग आ जाएंगे, वो मदद करेंगे. 4-5 लोग आकर आपकी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, फिर कोई अंदर बैठता है, न्यूट्रल में डालता है, फिर कोई स्टीयरिंग लेके बैठा है, फिर कोई गियर में डाल रहा है और आपकी गाड़ी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश में हेल्प कर रहे हैं आपको. Okay, so 5 people come and you are sitting in the car and they will push you and you will try to start the car. This is called grace. और यही है अनुग्रह. जब पता है आप ब्रेक डाउन होते हैं और मैं क्या आई कैन विटनेस एंड टेस्टिफाई व्हेनेवर आई हैव ब्रोकन डाउन इन लाइफ, मेरी गाड़ी को धक्का देने के लिए परमेश्वर ने लोगों को भेजा. Okay, this is my testimony that whenever मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है, the God had sent people to push me. स्वर्गदूतों को भी भेजा और इंसानों को भी भेजा. Okay, he has sent the angels and he has sent the people. और मैं कह रहा हूँ precious people, but all that you have to do is you have to come out of that car and start pushing the car. लेकिन आपको बाहर आके खुद थोड़ा धक्का मारना. अगर आप ये सोचोगे ओह कार इज ब्रोकन डाउन, अभी मैं अंदर ही बैठा हूँ फंसा हुआ, और अगर आप बाहर नहीं निकालोगे और अपना हाथ उस पे नहीं रखोगे, किसी को नहीं पता चलेगा you actually need help and grace. Okay, if you are just sitting inside and thinking and you are not coming out, nobody will know that you need help. लेकिन आपको बाहर आना है, बस उधर हाथ रखना है और एक्टिंग करनी है थोड़ी सी. Okay, you just have to come out and just put your hands and act. Does that make sense? आप वो ब्रेक डाउन गाड़ी से बाहर आके थोड़ी सी एक्टिंग करोगे तो 4 लोग आ जाएंगे. If you do some acting, the 4 people will come. वही अनुग्रह है मेरे प्रियो, जब आप निकल कर काम करने में लग जाते हो, परमेश्वर फौरन अनुग्रह भेजता है और आपको ये आपकी ताकत से नहीं है, परमेश्वर की ताकत से. Okay, the moment you start, God sends you people and it is about God. He will send angels and he will send people in your life. वो स्वर्गदूतों को भेजेगा, लोगों को भेजेगा. He will send opportunities. I declare over you and prophesy over you this coming week you're having opportunities and people like never before. और मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास मौके आ रहे हैं इस हफ्ते में जो आपके पास कभी नहीं. मैं घोषित कर रहा हूँ आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, क्योंकि आप गाड़ी को धक्का देने की थोड़ी सी एक्टिंग कर रहे हो. Amen. Because you are acting to push your car and परमेश्वर अपनी सामर्थ को भेजेगा. He will help you push.
Okay, God is sending His strength to देखो push. परमेश्वर ने हमारे गोल को बढ़ाया, अब देखो परमेश्वर कैसे लोगों को भेजेगा Okay, ये now गोल को God फुलफिल has करने के लिए। increased our tent and goal, and He'll send people. I'm like telling you, that. random people will come. जिन लोगों को हम नहीं जानते वैसे लोग आएंगे। The people whom we don't know will come. मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग दुनिया भर से आएंगे जिसका हमारे से कोई संबंध नहीं है। ऐसा भी होगा कि लोग दूसरे जातियों से आएंगे हमें मदद करने के लिए। I mean, from different tribes, people will come and help us. The word of God says 2 Corinthians 12:9. He said, "My grace is sufficient for you. My power is made perfect in your और weakness." दूसरा कुरिन्थियों उसका 12:9 में कहता है कि उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि अपनी मेरी ताकत से सामर्थ तो कोई भी कमजोरी में काम कर ताकत सकता है, लेकिन अपनी कमजोरी में केवल परमेश्वर ही काम कर सकता है। I mean, you can do when you have strength, you can do, but only God can do when you're weak. आप जिस चीज में स्पेशलिस्ट है वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस चीज में आप गवार हैं वो केवल परमेश्वर आपके द्वारा करवा Okay, सकता only है। God can make you do things which you don't know. आई डिक्लेयर ओवर यू दैट परमेश्वर आपका राइट हैंड भी परमेश्वर है, लेफ्ट हैंड भी परमेश्वर है। Amen. I'm saying that मैं बोल रहा हूँ कि आपका सीधा और उल्टा दोनों हाथ परमेश्वर आपका राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड ये दिखाता है कि एक स्ट्रांग है एक वीक है। है। Your right and left shows that one weak and one strong. जब हम बच्चों के साथ में खेलते हैं क्रिकेट तो हम लोग बोलते हैं मैं लेफ्टी खेलूंगा। Okay, when we play cricket, we say that मैं लेफ्टी खेलूंगा। I'll कितने play लोगों ने lefty. बचपन में बच्चों के साथ में उनको रैगिंग करने के लिए क्रिकेट खेला लेफ्टी से, चलो हम लेफ्टी बैटिंग करेंगे। We used to say that I'll play lefty, you play right. लेकिन बच्चे राइटी बॉलिंग कर रहे हैं, आप लेफ्टी बैटिंग करके भी छक्का मार रहे हो, But you are hitting sixes when you're playing क्योंकि lefty. आपका लेफ्ट हैंड आप उस अब वैसी स्थिति में हो कि आपका लेफ्ट हैंड भी उनके राइट हैंड से स्ट्रांग है। Okay, because you're in a state where your left is also stronger than their वैसा right. परमेश्वर है मेरे प्रियो, परमेश्वर का लेफ्ट हैंड भी इंसान के राइट हैंड से स्ट्रांग है। Amen. God's left hand is stronger than any human's right hand. Hallelujah, I'm telling you, Amen, God is amen. giving you grace today and you're going to go to the next मैं- level. और तीसरी बोल और रहा हूँ आखिरी कि बात आपको से मैं अनुग्रह मिल समाप्त रहा है करना आज। चाहता हूँ। Amen. Discipline happens through an environment and through practice. और अनुशासन ना एक बार बार करने से और एक माहौल से आता है। जब आप एक माहौल में रहते हो, अगर आप मूर्खों के माहौल में रहोगे तो मूर्ख बन जाओगे, Okay, if you are into the society of fool people, you will become a fool. लेकिन अगर आप बिलियनर्स के साथ में बैठ रहे हो तो फिर धीरे धीरे आप भी बिलियनर बन जाओगे। But if you are surrounded by billionaires, you will also become billionaire. मैं one day. धन्यवाद दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 2026 में परमेश्वर ने मुझे बड़े टेबल्स पर ही रखा, क्योंकि शायद परमेश्वर बड़े काम करवाना चाह रहा है। I mean, I just praise God that God has kept me into big tables so that because God wants क्योंकि to जब expand me. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नेक्स्ट लेवल करने जाएगा, पहले तो परमेश्वर आपको आइसोलेट करेगा। Okay, the first part He will isolate you. पुराने फ्रेंड से, पुराने सर्कल से, पुराने लोगों से, गॉसिपिंग, फालतू बकवास करने वाले लोगों से परमेश्वर आपको पहले खींचेगा बाहर। He'll pull you away from all the wrong things. उसके and all the बाद bad परमेश्वर speaking आपको एक नए टेबल पर बैठाएगा जहां पर लोग सिर्फ बड़ी बातें कर रहे हैं और अनुग्रह की बातें कर रहे हैं, जो आपके लेवल से और आपके आने वाले असाइनमेंट से संबंधित हैं। people. Okay, then God will guide you to people where what they are talking is related to your next. और उसको मैं कहता हूँ दैट्स व्हाई वी से फेलोशिप इज सो इम्पोर्टेंट। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वचन सुनना, प्रार्थना करना, दुआ करना, प्रभु का वचन सुनना, साथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। That's why we say that fellowship, prayer, and doing together is important. जेन जी से मैं कह रहा हूँ, डोंट यूज योर टाइम टू टॉक लाइक फालतू बकवास। And I'm saying to Gen Zs, don't waste your time for talking Rather, all this nonsense. Talk about the next big startup, talk about the next big thing, talk about how the ministry can go to the next level. ये चीजें बातें करो। आप अगले स्टार्टअप के बारे में बात करो, अगले मिनिस्ट्री ग्रोथ के बारे में बात करो। कुछ ग्रोथ से संबंधित, कुछ ग्रेस से संबंधित जो परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। टॉक अबाउट ग्रेस, टॉक अबाउट ग्रोथ। कहीं पर भी आप देखेंगे, चाहे डैनियल हो, चाहे मूसा हो, चाहे जो यूसुफ हो, परमेश्वर ने उनको माहौल में रखा, एक वातावरण में जहां पर परमेश्वर की ग्रेस का डाउनलोड होता गया। If you see Moses, Daniel, God has brought them in a place where grace is downloaded. मूसा को परमेश्वर ने मिस्र देश के उस पूरे राजमहल में रखा और उसने सारी चीजें वहां से सीखी, वहां की डिसिप्लिन सीखी। And the Moses was into the palace and he learned discipline there. आप सोचते हैं मोजेस ऐसे रैंडमली चुना गया, उसके पीछे बहुत हिस्ट्री। परमेश्वर ने उसको पहले बनाया, फिर तोड़ा और फिर उसके बाद एक गैप दिया और फिर उसको लीडर बनाया। So we think that God chose him Moses like that, but no, there was a training and the gap and everything. Amen. कई लोगों के लिए ट्रेनिंग आसान नहीं होगी। When you're being trained initially, आपके बचपन का जो ट्रेनिंग है, चाहे माँ बाप के अंडर में या स्कूल के अंडर में, कॉलेज के अंडर में, जो भी डिफिकल्ट ट्रेनिंग से आप होकर के गए, क्योंकि आप बड़े काम करोगे। Okay, initial days your training will not be easy, whether it is by anybody, but you'll do. पाउल great की things. लाइफ में भी हम देखते हैं वो गैमलियल के अंडर में सीखा हुआ था। And then we see Paul, he learned in the गैमलियल बहुत स्ट्रिक्ट लीडर था और उस टाइम के रैबाइज बहुत स्ट्रिक्ट थे और पॉल भी बहुत स्ट्रिक्टनेस में, सख्ती में ऊपर आया।
Okay, Paul was also strict because his teachers were strict. तो उसके बाद जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो उसी शक्ति में वो चला, लेकिन बहुत प्रेम से और रिश्ते में और अनुग्रह से चलने पाया. But when he became a Christian, that same discipline helped him to do more things for Are you God. with me, precious people of Amen, God? 1 Corinthians 9:27, इस बात को ध्यान से सुनिए. 1 Corinthians 9:27. पौलुस कहता है पर मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं अपनी ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. Okay, it says that I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself not be disqualified for the prize. I declare over you, जिन लोगों को जिम जाने की जरूरत है, अभी जाने की जरूरत है. Okay, whoever need to go to gym, you have to go to gym now. अभी आज जाओ, आज. Today, by the way, today. Amen. जिन लोगों को सही खाना है आज से, because this is all part of the package. सिर्फ आत्मिक चीजें नहीं, but it's everything, body, soul and spirit. Okay, body, soul and spirit, you have to focus. और जिन लोगों को घुटने पर प्रार्थना करनी है, come on, start with 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes. लेकिन जब आप इसको आदत बना दोगे तो डैनियल के समान हर मुसीबत में आप जाओगे, खिड़की खोलोगे, प्रार्थना करोगे, जो आए सो आए, जो जाए सो जाए, जो भी हो सो हो, लेकिन मैं और मेरा परमेश्वर और प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा. Okay, for praying you have to start practicing today so that tomorrow you will be trained. I'll tell you, कई लोगों को लगता है कि मैं आंखें बंद करूंगा और एक एंजल आ जाएगा, सडनली विजन दिखेगा मुझे. Okay, some people think that I'll close my eyes and suddenly angels will come. ऐसा नहीं होता है. परमेश्वर देखता है जब आप 30-40 साल से प्रार्थना कर रहे हो ना, तो फिर सडनली आपको परमेश्वर वैसे बातें करता है. डैनियल के साथ में यही हुआ क्योंकि डिसिप्लिन्ड प्रेयर वॉरियर था. Because he was a disciplined prayer warrior. When you do it with discipline, it happens. Amen. So precious people of God, जो discipline से आप परमेश्वर के पास आते हैं, उस discipline से परमेश्वर आपसे फिर बातें करेगा. Okay, when you come to God with discipline, the Lord will speak to you like that. Heaven is a heaven of protocols and discipline, and it recognizes when people are disciplined and walking in grace. Okay, when जब लोग अनुशासन में चलते हैं तो heaven इस चीज को देखता है. आइए हम प्रार्थना करें. I want to pray for you quickly. आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. इसके बाद हम तुरंत घोषणा प्रार्थना में जाएंगे. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की समय के लिए, आज सभी लोगों के लिए जो अनुग्रह के द्वारा जो अनुशासन में आप ला रहे हैं अपने लोगों को, उसके लिए धन्यवाद प्रभु. लॉर्ड थैंक यू प्रभु जी. धन्यवाद देते हैं हर जन को प्रभु, आप अपने अनुग्रह से भरे, अनुग्रह से भरे, अनुग्रह से भरे, अनुग्रह से भरे, अनुग्रह से भरे लॉर्ड, सो दैट इनपुट हम रोज उस अनुग्रह को पाते जाएं, रोज बड़े बड़े कामों को, और धीरे धीरे प्रभु जी हम बड़े कामों को करने पाएं. थैंक यू फादर, थैंक यू फादर. पिता हम धन्यवाद देते हैं जहाँ पर लोग कमज़ोर हैं वहाँ पर प्रभु जी आप अनुग्रह को और बढ़ाएं और बढ़ाइए प्रभु जी. मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी कि आपके लोग, जागो फैमिली के लोग जो हमसे जुड़े हैं प्रभु जी, वो लोग नेक्स्ट लेवल काम करेंगे, अपने सारे पीयर से ऊपर बड़े बड़े कामों को करेंगे, और प्रभु जी हम आपकी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे. इन जीसस नेम ऑल ऑफ गॉड्स पीपल सेड एंड आमेन. हम जल्दी से घोषणा प्रार्थना में जाएंगे जो शायद आपके स्क्रीन पर है सामने. वी गोना डिक्लेयर दिस वेरी क्विकली इन इंग्लिश, इन हिंदी. यस भाई पास्टर आकाश हमें लीड करेंगे हिंदी में, एंड आई थिंक ही विल गो एट वन शॉट. तो हम सब इसको ग्रहण करें. यस, हम सब डिक्लेयर करें उनके साथ में. Yes, आइए परिवार हम लोग घोषणा प्रार्थना करेंगे. हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह ही हमारी दैनिक शक्ति है. हम स्वयं पर निर्भर रहना छोड़ते हैं और हमारा नेतृत्व करने के लिए आपके सामर्थ्य पर भरोसा करने का निर्णय लेते हैं. हम यह घोषणा करते हैं कि आपका अनुग्रह उस उच्च उद्देश्य के लिए जीने की हमारी शक्ति है. तीतुस उसका 2:11-12 के अनुसार हम यह घोषणा करते हैं कि आपकी शक्ति हमारी कमजोरी में सिद्ध होती है. 2 कुरिन्थियों उसका 12-9 वचन के अनुसार हम यह घोषणा करते हैं कि हम आपके राज्य के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए उस आपके अनुग्रह द्वारा बदले गए हैं. 1 कुरिन्थियों उसका 15 उसका 10 वचन के अनुसार हम ये घोषणा करते हैं कि हर कठिन परिस्थिति आपकी महिमा के लिए हमारे चरित्र को संवार रही है. रोमियो 5 उसका 3 और 5 के अनुसार हम यह घोषणा करते हैं कि हमारी दैनिक आदतें आपके प्रेम के प्रति एक वफादार उत्तर होगी. प्रेरितों के काम उसका 2:42 के अनुसार यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना. Amen, amen. Let's declare in English as well. Heavenly Father, we thank you that your grace is our daily strength. We choose to stop relying on ourselves and start leaning on your power to lead us. We declare that your grace is our power to live for a higher purpose. Titus 2:11 and 2. We declare that your grace is made perfect in our weakness.
2 Corinthians 12:9. We declare that we are transformed by your grace to work hard for your kingdom. 1 Corinthians 15:10. We declare that every hard environment is molding our character for your glory. Romans 5:3-5. We declare that our daily habits will be a faithful response to your love. Acts 2:42 in Jesus' name. Awesome, family. Dear family, what a beautiful time we have had in the Lord's presence today. And as we move into the closing of today's service, let our hearts remain filled with gratitude and His peace. May His word take root in our hearts and bring transformation in the days ahead. See you next Sunday. Have a blessed Sunday, dear family. कोई शक है नहीं, कोई शक है नहीं, मेरा ईमान मेरा यीशु मसीह